morning, students. All of we are talking about Unit 8, that is D block and F block elements, in which most of the topics F block, that is called as lanthanide as well as actinides. Their properties are deleted, and from D block, potassium permanganate and K2Cr2O7, their preparation and properties are also deleted. Only general trends, general properties of D block are included in the examination going on held in the 2021. So we are talking about general properties of D block element. D block elements, as I have already explained that there are all the elements situated in 4 series and their names as well as properties I have already explained in my previous lecture. And today we will talk about general properties, general trends of the block elements, including trends in stability of higher oxidation state, ionization enthalpy, oxidation strength, chemical reactivity, magnetic properties, and so on. So, we will talk about trends in stability of higher oxidation state. Trends in stability of oxidation state. Those elements have tendency to form maximum number of oxide expressing their higher stability, such as titanium, vanadium, chromium, manganese, xenon, cobalt, nickel, copper, and zinc. All of these elements are in first series, that is, they are placed in fourth period. From them, chromium expresses maximum oxidation state. It expresses CrF6, CrF5, CrX4, CrX3, and CrX2 state. This is one of the important question. Which element of fourth series, first series, that is fourth period, have maximum oxidation state, have ability to express maximum oxidation state? Then all of you find that with the fluorine, chromium have ability to express maximum compound, that is in the form of chromium hexafluoride, pentafluoride, tetrafluoride, trifluoride, and difluoride. From difluoride to hexafluoride, chromium is able to form 5 fluoride compounds. But in the case of oxygen, when oxygen takes place in the chemical reaction with the D block elements, manganese is able to form 5 oxide, that is Mn2O7, MnO2, Mn2O3, Mn2O4, and MnO. This is the question: which one have ability to express maximum compound, to form maximum compound with oxygen in first series, that is fourth periods, transition elements? The answer will be manganese, because it has ability to form 5 oxide, and with the
fluoride with the fluorine, chromium is able to form maximum fluoride, that is CrF6 5 4 3 and 2. Now question is given here. How would you account for the irregular variation of ionization enthalpy first and second in the first series of the transition element? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बच्चों को हमने डिस्कशन किया है पहले। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, लेकिन वो कंसेप्ट हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो आपका है डी ब्लॉक के एलिमेंट का, वो एक इररेगुलर मैनर में चेंज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक रेगुलर मैनर नहीं होता है, रेगुलर फैशन में आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट्स के चेंज हो रहे हो। तो इसीलिए चूंकि इसमें इरेगुलरिटी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस रिलेटेड अगर आपसे पूछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि हर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप प्रिपेयर कर पाएँ ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक ऑर्डर में आप याद रखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम का 631 है, फिर 656 है टाइटेनियम का, स्कैंडियम का 631, टाइटेनियम का 656 एंड देन 650। देखिए पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, एंड देन 653, फिर ये थोड़ा सा बढ़ा, फिर 717, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 762 और बढ़ा, 758 और बढ़ गया, फिर 736 ये घट गया, फिर 745 बढ़ गया, फिर 906 बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस प्रकार से आप यह कंक्लूजन तो पाएंगे कि लास्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट दे आर सिचुएटेड इन सेकेंड बी सब ग्रुप और 12th ग्रुप। 12th group or second B subgroup. Their ionization enthalpy is comparatively very high due to inert pair effect, and ionization enthalpy of other elements are not in a sequence. Clear? तो अदर एलिमेंट हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी सीक्वेंस में नहीं होती है। फर्स्ट एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, और जो लास्ट एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सीक्वेंस नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, दे आर इन रैंडम वे, इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, सच टाइप ऑफ ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट second ionization enthalpy, that is second ionization enthalpy is also in random way, no doubt it have also not any proper significance of change, they have also randomness. So ionization enthalpy of D block elements cannot be determined on a ground that it increases or decreases from left to right or top to bottom. Any problem? Oxidation state, I have already told you that manganese shows highest oxidation state, +2, +3, +4, +5, +6 and +7। इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट, फर्स्ट सीरीज में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होती है। तो आपको ये जनरल नॉलेज के फॉर्म में याद करना चाहिए कि मैग्नीज जो है वो +2 से लेकर के +7 तक, +2, +3, +4, +5, +6, +7 रेस्पेक्टिवली 6 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करने की एबिलिटी रखता है।
दूसरा क्वेश्चन और भी इसमें पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है, लेकिन ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एक्सप्रेस होती। तो ये खास बात इसमें ये याद रखिएगा कि पहला मेंबर और लास्ट मेंबर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एक्सप्रेस करता। डी ब्लॉक का स्कैंडियम पहला मेंबर है और जिंक लास्ट मेंबर है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करता है और जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करता है। इसीलिए आप स्कैंडियम को 3rd बी में रखते हैं और जिंक को 2nd बी में रखते हैं। जिसे आप लोग आज ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुप 3rd और ग्रुप 12 कहते हैं। ये जनरल ट्रेंड्स हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें कोई पीरियाडिक चेंज नहीं मिलता। L2R आप याद कर लें या टॉप टू बॉटम याद कर लें तो पीरियाडिक ट्रेंड आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर एक किया गया है, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्वेश्चन ऐसा आपके पास सामने आ गया, ऐसे किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताइए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। तो अब आप यहाँ पर 2 एलिमेंट पा गए। आप यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं जिंक भी और स्कैंडियम भी। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसा क्वेश्चन आप है तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए अब कोई टेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले दिन बताते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वेट करिए। तो आज इसी पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।